Today we are going to do 1.3 unit, The Pilgrim. Last time we have done the first poem and the second lesson. Now today we are going to proceed with The Pilgrim. It's a very good poem. It's a very nice poem. The author is and the poet is anonymous. We do not know who has written the poem, but whoever has written the poem, it's written in a very good way. It is a motivational poem जो हमको मोटिवेट करता है. It gives us something, a good message, how we can give something to the society. हम अपने अच्छे कर्म, हम अपनी अच्छाई किस तरीके से छोड़कर जा सकते हैं. We should not be selfish. इसमें ये poem में the poet has shown us that how some person are selfless. Selfless means they do not think about their own self. They think about the people also who are going to pass by. For example, if you are walking and you find a very big stone in front of your path where you are walking, and you just say that you just kick it and you just go away, and you think why I should remove it. मैं क्यों इसको हटाऊं? मुझे लगा है मैं तो वापस इधर आने वाला तो नहीं हूँ, मैं इधर से जा रहा हूँ या जा रही हूँ. And you just go. That means we are selfish, that we do not think, we just thought about ourselves. But some people are there, whoever passes through that path, and if he happens to hit that stone, what the person will do, that person will think that whoever is going to come from behind, they may get hurt, they may get injured, they may fall down. That is why what they do, they just move the stone by the side and clear the path. That is the good deed. Good deed हमेशा is not about the financial help only. Good deeds are in this way also. एक छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत ही इंसान के लिए बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही importance करती है. And one good deed can just change, just help many lives. Okay, in this way the poet in this poem, The Pilgrim, has given a very motivational poem, very good message. Let us see what the poem is about. Okay, a poem, The Pilgrim, it means a traveler, एक person जो कहीं कहीं जाता है. जैसे हम घूमने के लिए बोल सकते हैं, एक यात्री होता है, एक ट्रैवलर होता है, और वो किसी न किसी वजह से एक जगह से दूसरे जगह जाता है. Like for example, hill stations, some religious places, some historical places, कोई भी जगह हो, या फिर कहीं भी दूसरी जगह अपने गांव की तरफ जाना, कहीं भी जाना. ट्रैवलिंग करना मतलब उसको बहुत सारे रास्ते क्रॉस करना पड़ता है. If he wants to go to the village and all, he has to go away, far away by walking or something. So in this way, the pilgrim is the person who travels. We can call it in Hindi a yatri. Okay, एक यात्री की कहानी है. Let us see what the poem says. Please refer to your textbook. The Pilgrim. First I read the poem. Okay, then I'll explain you one by one. The Pilgrim. A pilgrim going alone highway came at evening, cold and grey, to a chasm deep and vast and wide. The old man crossed in the twilight dim. The chasm had no fear for him, but he paused when he reached the other side, but built a bridge to span the tide. Old man, said a fellow pilgrim near, why waste your time in building here? Your journey ends with the close of the day. You never again will pass this way. You have crossed the chasm deep and wide. Why build here at eventide? The pilgrim raised his old grey head. My friend, in the path I have come, he said. There followed after me today a fair-haired youth who must pass this way. The chasm, which held no fears for me, to the fair-haired youth may a pitfall be. He too must cross in the twilight dim. My friend, I am building this bridge for him. Very nice poem. Let us start with the explanation. Okay, two lines we are explaining. It's like a story. First I will tell you the story.
how the pilgrim, a traveler, किस तरीके से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है. ओके, नाउ अ pilgrim, a traveler has started a journey. A pilgrim going a lone highway. He was a traveler, and there were many travelers also along with him. And that one person, an old person, he was traveling. वो अपना traveling में जा रहा था, पैदल जा रहा था, चलते चलते. Came at evening, cold and grey. बहुत ही ठंडी थी उधर और चलते चलते शाम हो गई. It was evening and it was dark. It was getting dark and he was just walking through that way. वो बहुत ही ठंडी थी, बहुत ही चिल था, फिर भी वो रास्ता क्रॉस कर रहा था, मतलब जा रहा था. To a chasm. Chasm is खाई. Okay, खाई इज लाइक डीप, एकदम स्टीप स्लोप्स जो नीचे की तरफ होती है, जहाँ बहता हुआ पानी रहता है, नदी टाइप छोटा सा पानी का टाइप रहता है, जहाँ पे खाई रहती है जो क्रॉस करके जाना रहता है. जो chasm, डीप एंड वास्ट एंड वाइड, बहुत ही गहरी खाई थी, बहुत ही लंबा रास्ता था, पानी बह रहा था और वो क्रॉस करके जाना था. The old man crossed in the twilight dim. Anyhow, now he was a traveler. Anyhow, he has to cross the way. He has to reach his destination. उसको अपने मंजिल तक जाना है और उसका वही वे है. तो किसी भी तरीके से this old man happened to cross that chasm. वो खाई, वो पानी का एरिया, वो पानी की जगह क्रॉस करके किसी भी तरीके से this old man he reached to the other side. उसने one old man, a pilgrim, हम old man नहीं बोलेंगे, pilgrim, और वो यात्री था, वो ट्रैवलर था जो एक जगह जा रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था और ट्रैवलिंग करते करते शाम हो गई थी, इवनिंग हो गई थी. एंड इट वाज डिम मतलब एक संध्या काल होता है, जैसे कि जब सूरज ढलने लगता है, इट गेट्स इवनिंग देन इट बिकम डार्कर. तो वहाँ पे चलते चलते शाम हो गई थी और उसने देखा कि बहुत बड़ी खाई है, बहुत ही लंबा चौड़ा झरना टाइप पानी है और वो क्रॉस करके उसको जाना है. बट स्टिल वो कहीं भी रुक नहीं सकता था, उसको जाना था. सो व्हाट ही डिड, एनी हाउ, किसी भी तरीके से उसने वो खाई और वो पानी का एरिया उसने क्रॉस कर लिया था. The chasm had no fear for him. Without getting feared, he crossed it. उसको खाई से डर नहीं लगा, वो बिना डरे वो खाई को पूरा क्रॉस कर दिया. ओके, chasm. But he paused when he reached the other side. Pause मतलब रुक जाना. जैसे उसने ये जगह से दूसरी जगह क्रॉस की, जो बहुत बड़ी खाई थी, बहुत वाइड खाई थी, बहुत ही पानी बह रहा था और वो पूरी जगह क्रॉस करने के बाद वो रुक गया. ओके, एक्चुअली ही हैड टू गो बट ही पॉज्ड देयर. पॉज मतलब टू स्टॉप देयर and built a bridge to span. But he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. Span the tide मतलब to go across the tide. फिर वो वहाँ पे रुक के क्या करने लगा उतनी शाम में? He started building a bridge. Building a bridge मतलब इतनी शाम हो गई थी, उसको वहाँ पे पहुँचे, उसे क्रॉस कर लिया था लीडर होके विदाउट गेटिंग फियर, और वहाँ पे रुक के he started building a bridge. Bridge in the sense you can see in the textbook कि किस तरीके से उसने प्लैंक मतलब लकड़ी के जैसे लगा के उसने वो सीढ़ी जैसा है, सीढ़ी टाइप मतलब वो प्लैंक जैसा है जहाँ पे पैर रख के कोई भी क्रॉस कर सकता है. सो इन दिस वे क्या होगा, वो खाई से लेके पानी का एरिया तक किसी को डर नहीं लगेगा, किसी को पानी में से क्रॉस करके आना नहीं पड़ेगा. व्हाट दे विल डू, दे विल यूज दिस ब्रिज and they will cross it because many people may pass away at that time. So what that man did, he just crossed that chasm, the tide, and tide is बहता हुआ पानी. Okay, and other side when he reached the other side, उसका काम तो हो गया था, वो अपना traveling कर चुका था उधर से, but still he paused, he stopped there and he started building a bridge. और वहाँ पे रह के उसने वहाँ से लेके यहाँ तक वो एक ब्रिज बांधने लगा जहाँ पे उसके ऊपर से चढ़ के कोई भी लोग आ जा सकते हैं. Old man said a fellow pilgrim near. उनके साथ में और बहुत सारे यात्री थे. There were many travelers on the other side with them, along with them, और वो भी चल रहे थे. तो वहाँ से उसमें से एक fellow means एक youth, एक जवान youth, एक person, वो उसने that man was older and this man was youth, and
and he asked that old man, he asked that person who was building the bridge, जो ब्रिज बांध रहा था वो आदमी को, उनका साथी यात्री था, वो जो दूसरा यात्री था, वो उसको वहां पे रुक के he is asking, he says, old man, why waste your time in building here? अंडरलाइन करना है लाइन, तुम अपना वक्त क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो ये ब्रिज बनाने में? Why are you wasting your energy? Why are you wasting your time? क्योंकि बहुत वक्त लगेगा और एकदम शाम हो रही थी, बहुत टाइम लगेगा उसको ब्रिज को बनाने में. And that man, the youth is asking that person कि तुम क्यों यहाँ पे अपना वक्त जाया कर रहे हो, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? Why are you wasting your time in building this bridge? क्यों बना रहे हो तुम ये ब्रिज, अपना वक्त खराब कर रहे हो? Your journey ends at the close of the day. And वो क्या बोलता है उसको कि तुम्हारी जर्नी तो खत्म हो गई, इवनिंग तो हो गई, तुमने वो खाई जो क्रॉस करना था वो तो कर दिया, अभी तो तुम अपने आराम से घर पे जा सकते हो, तुम्हारा ट्रैवलिंग अभी आराम से हो जाएगा जर्नी. बट why are you just standing and building this bridge without by wasting your time? Your journey has ended. तुम्हारा ट्रैवलिंग तो खत्म हुआ है, फिर भी तुम क्यों यहाँ पे खड़े रह के ये ब्रिज बांध रहे हो? You never again will pass this way. The youth is asking, why are you wasting your time in building this bridge? ये ब्रिज बांधने में तुम क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी जर्नी तो हो गई, तुम तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो उधर, फिर भी तुम वापस से इसको यहाँ पे आने वाले नहीं हो, तुम वापस से ये क्रॉस करने वाले नहीं हो, तो फिर किसके लिए बांध रहे हो या क्यों बांध रहे हो? You have crossed the chasm deep and wide. इससे तुमने बहुत ही लंबी चौड़ी खाई जो है और जो बहता हुआ पानी है, किसी भी तरीके से तुमने वहां से लेके यहाँ तक क्रॉस कर लिया है, तो अभी तुम किसके लिए ब्रिज बांध रहे हो? अभी तुमको ब्रिज बांधने की जरूरत नहीं है. You are wasting your time, he says. Why build here at eventide? इसे क्यों इतनी अंधेरे में, इवनिंग हो चुकी थी, बहुत ही शाम हो चुकी थी और इससे शाम हो गई है. And that person was very old person. So he asked, that youth is saying, it's already evening and you have to go to your house. Now you have to complete your journey, but still you are waiting here and you are building the bridge. Now what the youth is saying, you have already crossed the chasm and you have to continue your journey. Why are you wasting your time in just building this bridge, and for whom you are building this? Because you will not pass this way again. तुम वापस से ये ब्रिज तो क्रॉस करने नहीं आओगे, तो तुम्हारी जर्नी तो खत्म होगी. तुमने ऑलरेडी वो कैज़, वो खाई है, वो बहुत ही निडर होके, फियरलेस होके, तुमने बिना डरे हुए तुमने क्रॉस कर लिया है, तो अब क्यों अपना वेस्ट कर रहे हो? और इतनी शाम हो गई है, इतनी इवनिंग हो गई है, तो why are you wasting this time building this bridge? Now who says this? The youth, the person who was along with him as a traveler. जो ट्रैवलर, ये सब ट्रैवलर्स थे और उनके साथ में और एक ट्रैवलर था, फेलो पर्सन, और उसने ये सब इनको पूछा. Now let us just revise the poem. One man who is traveling, he comes across a steep chasm and anyhow it's evening and it's very cold and he just happens to cross that chasm without getting feared. But once he crosses, he paused there, he stopped there and he started building the bridge. And one fellow youth comes and asks him, why are you wasting your time in building this bridge? Because you are not going to pass this way again. And it's already evening. So why are you just wasting your energy and time building this bridge? Now let us continue. The pilgrim raised his old grey head. It was very sad. Okay? Or when that fellow person, that youth, asked him, why are you wasting your time in building this bridge? That time he just raises his head. वो बांध रहा है नीचे झुक के, और जैसे ये पूछता है ये सब कि क्यों बांध रहे हो, ये शाम हो गई है, किसकी वजह से बांध रहे हो, तुमने ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो, तुम वापस से तो ये रास्ते से नहीं आओगे, फिर किसके लिए, क्यों ऐसा वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना, तो तुम अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो. When he says, और जब ये old man listens to this, तभी वो अपना सर ऊपर उठाते हैं and he says, my friend, in the path I have come, he said. Underline करो. बोलता है कि my friend, ये जो रास्ता मैं आया हूँ, ओके, ये जो खाई क्रॉस करके मैं जो आया हूँ, that fellow after me today.
A fair-haired youth who must pass this way. saying कि ये मैं जो आया हूँ, जो रास्ता क्रॉस करके, he knows how difficult it was. किस तरीके से ये स्टीप खाई, ये कितनी बड़ी खाई है, कितनी चौड़ी खाई है, कितना पानी बह रहा है, और उसको क्रॉस करने में मुझे नहीं डर लगा, लेकिन मेरे आने वाले जो लोग रहेंगे पीछे, जो वापस कोई ना कोई आएगा, उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा, इसके लिए उनको आसान हो. It will be very easy for them to cross. A fair-haired youth who must pass this way. So it says that कि कोई और पर्सन तुम्हारे जैसा या मेरे जैसा पर्सन इसी जगह पे हो सकता है, उसको आना पड़े, उसको यही खाई क्रॉस करना पड़े, कि इतना गहरा पानी क्रॉस करना पड़े, तो उसके लिए आसान होगा. See the good deed, the selflessness. The caste which had no fears for me, to the fair-haired youth made me a pitfall be. See, this caste, the khai, is not so scared for me. I have already crossed it, but it can be very difficult for the other person who must be traveling from here. वो बोलता है कि मेरे लिए आसान था, मैंने बहुत आसानी से क्रॉस कर लिया, लेकिन मेरे बाद जो भी यूथ आएगा या कोई भी ट्रैवलर आएगा, इसको ये खाई क्रॉस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा. पिटफॉल इज शॉर्टफॉल, बहुत ही हर्डल होना. हर्डल मतलब एक बीच में ऑब्स्टिकल आना, तो उसके लिए ये खाई क्रॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट होगी. इसके लिए मैं उसके लिए ये ब्रिज मांग रहा हूँ उन लोगों के लिए. He too must cross the twilight dim. इससे हो सकता है उसको भी अपना ट्रैवलिंग करते करते शाम हो जाए, जैसे मुझे हुई है. That man who wanted to travel, it was very evening and he happened to cross that chasm. So what he thought, उसने देखा कि किस तरीके से उसने लीडर होके और कितने डिफिकल्टी से वो क्रॉस किया है, और अभी उसको एहसास हो रहा है कि कोई और आएगा तो उसको कितना डिफिकल्ट होगा. उसने किसी भी तरीके से अपना क्रॉस कर लिया लीडर होके विदाउट गेटिंग फियर, बट ही इज थिंकिंग अबाउट द अदर पीपल कि कोई और आएगा और हो सकता है उसको भी ट्रैवलिंग करते करते शाम हो जाए और उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए. अगर ये खाई क्रॉस नहीं होगी तो उसको वहीं पे अपना दिन बिताना पड़ेगा या रात बितानी पड़ेगी और उसकी जर्नी इनकम्प्लीट हो जाएगी. वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा. This he thinks, so great thinking it is, so noble thinking it is, so good thinking it is. He too must cross in the twilight dim, my friend, I am building the bridge for him. हो सकता है उस यूथ को मेरे जैसा ही क्रॉस करना पड़े और शाम हो जाए और उसके लिए डिफिकल्ट हो, और डिफिकल्ट होने की वजह से उसके लिए बहुत ही परेशानी आ सकता है. He will not reach his destination. He has to spend his time there night, और उसकी जर्नी इनकम्प्लीट हो सकती है. इसके लिए that man says that I am building this bridge for that person. That means he is thinking about the people. वो कुछ good deed करके जा रहा है. See, once he is going to build this bridge and it's going to remain forever. ये जो ब्रिज वो बांधेगा, आज तक किसी ने बांधा नहीं, कितने लोग पता नहीं वहाँ से क्रॉस करके चले गए, लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं कि आने वाले जो लोग होंगे उनको कितना डिफिकल्ट होगी. लेकिन ये ओल्ड मैन, उसने फील किया, उसने देखा कि कितने डिफिकल्ट होगा ये क्रॉस करना किसी और को, एंड ही थॉट कि आई विल बिल्ड दिस ब्रिज. और देखो वो वापस तो ये क्रॉस नहीं करेगा, वापस तो ये रास्ते पे नहीं आएगा, लेकिन कोई और आएगा और हमेशा के लिए जो भी ट्रैवलर आएगा उसके लिए वो रास्ता आसान होगा. उनको पानी में या खाई से क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर अबाउट द ब्रिज. ओके, सो इन दिस वे द पोएट टेल्स अस समथिंग अबाउट गुड डेज. मोटिवेशन पोएम है, बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है कि अ पर्सन हु इज क्रॉसिंग द chasm and how he faces the difficulties and he feels that he can cross but other person will not cross. इसका मतलब वो किसी और के लिए अच्छा करके जा रहे हैं, किसी और के लिए अच्छी चीज़ें बना के जा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स आर प्लांटिंग अ ट्री, जैसे एक मैंगो ट्री को उन्होंने प्लांट किया और मैंगो ट्री वन नाइट में या एक महीने में या एक साल में तो ग्रो नहीं होते. इट टेक्स 5 to 10 years टू ग्रो एंड टू गिव द यील्ड.
तो वो ये नहीं सोचते कि उनको खाने के लिए चाहिए, लेकिन उसका फल आने वाला जनरेशन खाता है। जैसे कि शेडो है ना, शेड, एक शेड होती है ट्रीज की, जो ट्रीज प्लांट करते हैं, और जिन्होंने भी प्लांट किया है वो तो आके वो शेड में नहीं बैठते, लेकिन जो ट्रैवलर्स होते हैं वो आके वो शेड में बैठते हैं। तो उन्होंने कितना पुण्य का काम किया, वेरी नोबल डीड्स। सो हियर आल्सो द पोएट इज टेलिंग अस, एनोनिमस है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मैसेज दिया है कि हमको हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, किसी और के लिए अच्छा सोचना चाहिए, किसी हम अपने आप के लिए ही नहीं सोचना चाहिए। वी शुड नॉट बी सेल्फिश, वी शुड नॉट फील दैट कि हाँ ये मैंने कर लिया तो बाकी वालों का हमको क्या करना है। विद दैट फीलिंग शुड नॉट कम, वी शुड बी ऑलवेज हेल्पफुल। ये पोयम हमको बताती है कि एक मोटिवेशन पोयम है जो हमको ये बताती है कि वी शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल। पीपल आर लाइक यू नो कि थोड़ा जेलस होना, हम क्यों करें, होने दो उनको प्रॉब्लम, ये सब थिंकिंग, ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये अच्छी थिंकिंग नहीं है। इट इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग थिंकिंग। तो ये थिंकिंग हमको हटानी चाहिए। वी शुड बी कोऑपरेटिव, वी शुड बी हेल्पफुल, वी शुड बी लविंग, वी शुड थिंक अबाउट द कमिंग जनरेशन। हम किसी के लिए कुछ अच्छा करके जाना। ओके, सो इन दिस वे द पोएम द पिलग्रिम, अ ट्रैवलर, वो ट्रैवलर को पता नहीं कि कौन आए, उसके लिए तो सब अननोन है, स्ट्रेंजर्स है, बट स्टिल थिंक कि वो क्रॉस करने पे उन्होंने क्या फील किया होगा, कि क्रॉस करते वक्त उनको कितनी परेशानी हुई होगी, कितनी ठंडी थी उधर, कितनी शाम थी, फिर भी उन्होंने किस तरीके से वो खाई को, वो पानी को किस तरीके से उन्होंने क्रॉस किया। और क्रॉस करने के बाद ही स्टॉप देयर एंड ही थॉट, वो चाहिए तो जा सकते थे वापस, क्योंकि उनको उन्होंने ठेका लेके नहीं रखा था, या इट वाज नॉट कंपल्सरी फॉर हिम टू बिल्ड, लेकिन ही स्टूड देयर एंड ही थॉट हाउ ही कैन डू दिस गुड डीड। उन्होंने किस तरीके से, बहुत सारे ट्रैवलर्स जो लाइफ लॉन्ग ट्रैवलर्स जो आएंगे और उनको ये रास्ते से क्रॉस करना पड़ेगा, तो उनके लिए क्या मुश्किलें होंगी। और हो सकता है कुछ फैमिलीज को शाम हो जाएगी ट्रैवलिंग करते करते, और शाम तक वो आकर वहाँ पे रुक जाएंगे, तो किस तरीके से क्रॉस करेंगे। कितना गहरा थिंकिंग, सो डीप थिंकिंग थॉट अबाउट द पीपल। और वो पीपल उनको पता नहीं है, लेकिन वो कुछ अच्छा करके जा रहे हैं सबके लिए। सो इन दिस वे वी शुड बी वेरी selfless, we should not be selfish, we should not think about ourselves only, we should be helpful and motivational, and we should give a good message. We should, हमारी सोसाइटी में भी हम ये सब कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द पोएम द पिलग्रिम, अ ट्रैवलर। हाउ गुड थिंकिंग आर हिज, कितने नोबल थिंकिंग से वो किस तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता आसान कर दिया। ही हैज मेड द वे क्लियर। अभी वो ब्रिज वही रहेगा और हमेशा के लिए लोग उसी पे चल के जाएंगे। पीपल विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी। सो इन दिस वे वी एंड दिस पोएम। रीड दिस पोएम, राइट वंस in your English notebook this poem, and just revise it, and just enjoy your reading. Do your homework, write a central idea on this poem, write it in your own words, just read four lines, and you can elaborate in your own way in this poem, or you can add your own points, और बहुत अच्छे से central idea बनाना, and just read it twice. Okay, take care, have a nice day, thank you.